please feel free to ask at the same moment. I don't mind you interrupting me. You can ask me the doubt. Okay, so let's start. This is how a bar graph looks like. You're given a question and then you're given a graph. A bar graph is nothing but these columns, if you can see. जैसे columns बने हुए ना, इनको bar graph कहते हैं. So it can be like this. It can also be horizontally. ऐसे भी बने हो सकते हैं bar graphs. I'll show you that later on. But ये bar graph होता है. Bar graph is like a column graph. इसको column graph भी कहते हैं because these are columns. Okay. Every bar graph has two axes. जैसे कि इस केस में ये वाली जो एक्सिस है इसको y एक्सिस कहते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं. जो ये वाले ग्राफ्स हैं जो जैसे वर्टिकल हैं, इनके अंदर ना y axis पे डेटा होता है. Like you can see, it's the data on the y axis. And on the x axis जो होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है. For example, in this case, it's days. It can be years. It can be something else. It can be anything. कुछ भी हो सकता है. In this case, it's days. It can be years. It can be age groups. It can be countries. It can be anything. We'll see further on कि क्या क्या हो सकता है. तो कुछ भी हो सकता है. पर y axis पे क्या होने वाला है? डेटा होने वाला है. Okay. Now, before we start, I want you to read the question once and understand that what's important while answering the question. So if you read the second line in the question says, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So they are telling you to select and report the main features. इसका क्या मतलब है कि कुछ unimportant चीज रह भी जाए तो it's okay. You don't need to care about unimportant things. अगर कोई बात रह जाए, something like that, so don't worry about it because the question itself is asking you to report the main features. And second thing जो है वो ये क्या कह रहे हैं, make comparisons where relevant. So they're asking you to make relevant comparisons. So the question itself wants you to focus on the main features and the question wants you to answer the main comparisons. तो इन चीजों पे हमारा भी बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, comparisons पे and main features पे. If we do not write them in our graph, we are not going to score good bands. So ये दो main चीजें हैं, features and comparisons. And I will cover how do we make them, how do we answer the graph, I will cover them. Okay. So let's begin. हम कैसे attempt करते हैं? So a normal, if you don't have any idea, for any graph, but in this case, especially now I'm talking about bar graph, we'll make 4 paragraphs. I'll start with the introduction paragraph. Then I write an overall and I'll tell you what the overall is. And the third and the fourth paragraph is the data description. इसके अंदर हम थोड़ा बहुत जो हमारा overall है ना, वहाँ पे हम जो करते हैं features, third and fourth में हम data के साथ उसको support करते हैं. And I'll show you what I mean. Again, जब हम attempt करेंगे तो ज़्यादा better clarity आएगी. So we start with the introduction, then we write the overall, then we write the description, 2 paragraphs. Now, some of you might have attempted, some of you might have seen written graphs जिनके अंदर overall नीचे आता है. So इसका मैं आंसर ये करना चाहता हूँ कि a lot of times से मैं overall पहले लिखवा रहा हूँ and I've seen an improvement in the bands that my students scored. So nowadays, in fact, it's been 1 year, 1.5 years, मैं overall after the introduction लिखवा रहा हूँ because I've seen a better marks. It's not right, it's not wrong कि overall बाद में लिख दो, but overall पहले लिखने से मेरे को लग रहा है, मैंने देखा है जो my students are scoring better bands. So I prefer this method. अगर किसी के मन में ये डाउट था कि बाद में लिखना है या नहीं, पहले लिखना है, so I prefer to make you write it after the introduction. इससे टाइम भी बचता है, ये भी इनको बता दो. Students have been able to finish the graph in less than 20 minutes always. Yes, and another thing that I want to add here is, इसका एक और advantage ये है कि overall is the most scoring part of the graph. जो bands होते हैं ना overall के होते हैं, तो अगर data रह भी जाता है बाद में लिखते लिखते, then it's okay, कुछ नहीं हुआ, data रह गया, it's not important. But overall अगर छूट जाएगा, you will never score good bands. So that is another reason कह सकते हो कि overall पहले लिखना फायदेमंद है, क्योंकि अगर overall छूट गया, you are not going to score good bands. Never ever. कोई chance ही नहीं है. Okay. So now let's look at this graph and how do we write the introduction. Okay. So you look at this graph. How do we attempt the introduction is,
focus on two things when you're writing the introduction. One, please read the question. Question को हमने लेना ही लेना है introduction के अंदर. And the second thing that students ignore is कि वो ना ग्राफ पे नहीं ध्यान देते हैं, वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. So देखो अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ, the graph below shows the cinema attendance of people on different days of the week in 2003, 2005 and 2007. Clear? 3 years दिए हुए हैं, 3 years में cinema attendance दी हुई है. So 3 years में cinema attendance दी हुई है, different days of the week, different days of the day. Now to understand this better, I will look at the graph. So I looked at the graph, different days of the week दिए हुए हैं, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I get the clarity. Okay. But then I read this percentage of people going to cinema. Percentage of people जो cinema जा रहे हैं. अब अगर यहाँ से cinema attendance clear नहीं हुआ था, यहाँ से ये बात ज़्यादा अच्छी clear हो गई कि ये percentage किस चीज़ की percentage है, कितने लोग cinema जाते हैं. मतलब Monday को, for example, Monday को first year is 2003, 7% लोग cinema जाते हैं सिर्फ in 2003. And ये decrease हो गया कितना हो रहा है 5.5. मतलब in 2007 how many people are going, 5.5% people are going to the cinema. So I get a clarity कि cinema attendance का मतलब क्या था. Cinema attendance का मतलब था number of people or percentage of people जो क्या करते हैं, visit करते हैं cinema. So अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि तुम इसकी अच्छी तरह पैराफ्रेजिंग कर सकते हो जब तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे, मतलब तुम अपने आप बदल के लिख सकते हो. अगर तुम डायग्राम पे ध्यान नहीं देते तो तुम ये नहीं कर पाते. तो द ग्राफ, I will always tell the type of graph. For example, in this case, it's the bar graph. So I'll write bar graph. Then I use two words. I either use illustrates or I use compares. और कोई वर्ड्स नहीं मैं यूज करता. आई नो यू माइट हैव डन अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अगर पहले कहीं करा हुआ है या बुक्स में देखे होंगे. डिपिक्ट्स, elucidates, represents, reveals. I know there are millions of words, but all of them are not suitable here. So I'm going to repeat this thing. Go for only two words, illustrates and compares, and obviously shows, but shows already question में होता है, तो shows की जगह मैं two words use करता हूँ, या तो मैं illustrates use करता हूँ या मैं compares use करता हूँ. Other words have different meanings, and I don't want to waste time on explaining क्या meaning है, but मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ. You can go for two words. Do not try to change them. मतलब यहाँ पे मत कोशिश करो, because you won't be able to impress the examiner, but you might write something wrong and you might harm yourself in the attempt of impressing the examiner. So write these two words, and please be careful about the subject verb agreement here. Subject word agreement क्या होता है कि अगर graph है तो ये illustrates आता है, मतलब singular के साथ s आती है. अगर graph है तो illustrates, अगर graphs था तो क्या हो जाता है, illustrate. तो ये एक माइनर मिस्टेक होती है, ग्रामर की मिस्टेक. बाकी जगह फिर भी ग्रामर की मिस्टेक टॉलरेबल है, बट इन द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन it would be very counterproductive. It would be harmful for you. It might, मतलब bands अच्छे नहीं आएंगे, because you will create a very bad impression in the very first line. तो यहाँ पे make sure you don't make that mistake. ग्राफ है तो ऐसा आएगा, illustrates. अगर ग्राफ्स है तो नहीं आएगा s. And then you think यहाँ पे cinema attendance था, but because I looked at the graph, I was able to know कि क्या दी हुई है, percentage of people going to the cinema. So I wrote that the percentage of people visiting the cinema on different days of the week between 2003 and 2007. तो simple मैंने यहाँ पे paraphrasing कर दी. So this is how I do the introduction. Remember, what I believe is paraphrase loosely. मेरे को वो अप्रोच आई डोंट थिंक स्कोर्स गुड बैंड, जहाँ पे तुम एक एक वर्ड उठाते हो उसका सिनोनिम देखने लग जाते हो. फॉर एग्जांपल सिनेमा का सिनोनिम ढूंढ लेते हैं एंड वो डाल देते हैं. अटेंडेंस का सिनोनिम ढूंढ लेते हैं, वो डाल देते हैं. वो अप्रोच डजंट स्कोर दैट मेनी बैंड्स. सो मैं उस अप्रोच के अगेंस्ट हूँ. आई बिलीव इन डू नॉट फोकस सो मच ऑन चेंजिंग द सिनोनिम. लगाने में इतना मत ध्यान दो, मेरा मतलब है. एंड ट्राई टू जस्ट look, change the tone, change the English in a way. मतलब उसको different way में कहने की कोशिश करो. Cinema attendance समझो क्या cinema attendance है. Cinema attendance यहाँ पे clearly बताया हुआ है, अगर तुम्हें पता भी नहीं होता. Percentage of people going to the cinema. So that gives clarity. Percentage of people visiting the cinema.
Okay, so this is how you write the introduction. Now, any doubts introduction के लिए, और तुम कुछ और करते थे, तुम्हारे मन में कोई भी doubt है, ask and I clarify and we move forward. Any doubts? कोई भी कुछ भी नहीं पता तो पूछो. Anything you're not clear with the introduction, or any other doubt पूछ लो. सर illustrates और compares only bar graph के लिए या फिर नहीं, सारे process? graphs के लिए, सारे graphs के लिए except मैं 2 graphs छुड़वा रहा हूँ. The graphs that I'm not going to okay, the graph I don't want you to attempt this is process. Process में compares word नहीं आएगा. तो बाकी सारे graphs में ये चलता है, illustrates चलता है, compares चलता है. Process को छोड़ के process में compares word भी नहीं आएगा because there is no comparison in the process graph. So you know how the process graph is. वहाँ पे सिर्फ illustrates ही चलेगा. तो ये सबके लिए है except process के लिए, क्योंकि process में compares नहीं आना. So that's it. Any other doubts? Saurav ke alawa, anyone else? Anything not clear? Okay. If no problems, then moving forward. Now let's come to the overall. See, overall, मेरी भी approach ना बहुत time पहले, मतलब I think I started teaching in 2013. It's 2020 now. So I have matured a lot in understanding how to write the overall. पहले मैं भी इतना ध्यान नहीं देता था, पर अब मेरे को पूरा क्लियर है कि कैसे बैंड्स आते हैं ओवरऑल में, कैसे you need to score 8 bands, 8.5 bands. I know. So the thing to notice in the overall is you have to write 2 features. 2 features लिखने ही पड़ते हैं अगर ओवरऑल में अच्छे बैंड्स लेने हैं. अब 2 features का क्या मतलब है, I'll tell you. So देखो, 2 features means 2 different broadly observed comparisons. मतलब और features का मतलब है ऊपर से, depth में नहीं. First of all, do not care about depth. Do not go into like बारीकियों में नहीं जाना. Like बारीकी कैसे होगा? For example, Sunday का तुम देख रहे हो, पहले गिरा फिर stable रहा. This is like going into a very बारीकी. तो ये नहीं है. Overall में ऐसी बातें नहीं लिखते हैं कि पहले गिरा फिर stable रहा. ये बातें नहीं लिखने वाली हैं overall में. ठीक है? ओवरऑल में ये भी नहीं लिखने वाला कि सिर्फ संडे पे फोकस करके आ गया. ये भी बारीकी हो गई. देयर आर हाउ मेनी डेज? देयर आर 7 डेज. सो व्हेन यू राइट द ओवरऑल, तुमने ऐसे लिखना है कि सारी चीजों की बात हो. सो एंड ओवरऑल में हमने 2 कंपैरिजंस लिखने हैं, 2 फीचर्स लिखने हैं. सो इफ आई लुक एट इट, देखो y एक्सिस पे तो क्या होता है, डेटा होता है. तो y एक्सिस पे तो तुम कंपैरिजन करते हो, तो कंपैरिजन करने वक्त तुम डेटा को देखते हो. तो y एक्सिस को तो अलग रख दो. फॉर एग्जांपल, अगर तुमने कंपैरिजन करना है, तुमने मंडे को करना है, ट्यूसडे को करना है, तो तुम मंडे का डेटा देखोगे, ट्यूसडे का डेटा देखोगे. वो तो डेटा देखने के लिए है जब कंपैरिजन करना है. तो उसको अभी साइड पे रखते हैं. y एक्सिस पे इतना ध्यान अभी मत दो कि हमने वो डेटा लिखना नहीं है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द कैसे कंपैरिजंस करते हैं. अब यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं ग्राफ में. एक ये डेज दिए हुए हैं, एक ये ईयर्स दिए हुए हैं. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड 3 years आर गिवन. इनमें कंपैरिजन होगा. मतलब क्या? मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, इनके बीच में कंपैरिजन होगा. एंड 2003 से लेके 2007 तक अगर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो वाली चीज बताई जाएगी. दिस वुड बी योर फीचर. दिस वुड बी योर ब्रॉड ऑब्जर्वेशन. So now let's look at it. Broadly observe करते हैं. अगर तुमने किसी को broadly बताना हो कि क्या हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, let's first take the easy thing. 2003 से लेके 2007 तक क्या चेंज हुआ है, तुम किसी को बताना चाहते हो कि लोग सिनेमा जाते थे, वो बढ़े या घटे. ठीक है? और एक दिन पे फोकस नहीं करना, सारे दिनों पे फोकस करना है. पर सारे दिनों पे फोकस करने के लिए तुम पहले एक दिन ही लोगे. मतलब I'll tell you what I mean. So अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर अभी जब मैं देख रहा हूँ तो ग्राफ कैसे देख रहा हूँ. पहले मैं मंडे को देखता हूँ. मंडे में क्या हो रहा है? जो लोग सिनेमा जा रहे थे उनका नंबर क्या हो रहा है? गिर रहा है. पहले 7.5 था, गिर के क्या हो गया? 5.5. देन आई कम टू ट्यूसडे. ट्यूसडे में लगभग क्या रह रहा है? सेम ही रह रहा है. 9.5 थोड़ा सा गिरा, 8.5 दोबारा आ गया 10 पे. सो लगभग सेम ही रहा. देन आई कम टू वेडनेसडे. 10 थोड़ा सा गिरा, 9 एंड देन इट केम बैक टू 10. मतलब लगभग सेम ही रहा. Then I came to Thursday. 11 से गिर के 10, लगभग सेम ही रहा.
Friday 16.5, 16.5, 16.5, लगभग सेम रहा. Let's come to Saturday. Saturday 26, 27, 28, थोड़ा सा बढ़ा. Then you come to Sunday. थोड़ा सा 22 से लेके 21, थोड़ा सा घटा, मतलब लगभग सेम रहा. अब now if I want to tell about everyone, मतलब मेरे को सिर्फ मंडे का नहीं बताना, मेरे को सिर्फ सैटरडे का नहीं बताना, मेरे सारे दिनों का बताना है. तो what will you tell someone? एक लाइन में क्या बताओगे कि सिनेमा विजिटर्स में क्या हुआ? बढ़े घटे सेम रहे, क्या बोलोगे? थिंक अबाउट इट. बस ये पूछ रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में भी नहीं. जस्ट टेल मी व्हाट विल यू टेल कि सिनेमा विजिटर्स बढ़े घटे कि सेम रहे, क्या बोलोगे? सर थोड़े से डिक्लाइन हुए, फिर वो उसी चीज हमें पहुंच गए. अच्छा ठीक है. अब लेट्स थिंक मंडे में 7.5 to 5.5. काजोल, डू यू थिंक दिस इज अ बिग चेंज और नो? No, that not that much. अच्छा, लेट्स कम टू ट्यूसडे. 9.5 and final value 10. बिग चेंज और नो? No, minor. नो. इसमें भी बिग चेंज नहीं. किसी भी दिन में बिग चेंज लग रहा है या नहीं? नहीं. तो कैंट आई से दैट कि परसेंटेज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया विद टाइम? कैन आई से दैट? Yes, sir. हाँ, तो फिर आई विल जस्ट से दैट. देखो, एक लाइन में मैंने सारे दिनों का बता दिया. आई वुड से दैट देयर वाज नो नोटिसेबल डिफरेंस और चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ सिनेमा विजिटर्स विद टाइम. तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आया प्रोपोर्शन ऑफ सिनेमा विजिटर्स विद टाइम ऑन एनी ऑफ द डेज. किसी भी दिन कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आया प्रोपोर्शन ऑफ सिनेमा विजिटर्स में विद टाइम के साथ. मतलब बढ़ा नहीं, घटा नहीं. So it remained nearly the same. With time, it remained same. There was no noticeable difference. So I will write that. So now that is a comparison कि 2003 से लेके 2007 तक क्या हुआ. I know it was confusing थोड़ा सा, but it'll become easier. अभी मैं एक ही ग्राफ नहीं करवाऊंगा. I'll do other graphs ताकि तुम्हारे को practice हो and you'll become better at it. Okay. So now look at the other type of comparison. अब तो मैंने years का कर लिया. Now let's compare Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. इनका आपस में करते हैं. Let's forget the years. अब मेरे को कोई बताएगा सबसे ज्यादा कौन से दिन जा रहे हैं लोग out of all the days? Saturday. Saturday. So I'll tell that to the examiner कि maximum लोग कौन से दिन जाते हैं सिनेमा देखने. कौन से दिन गए थे? Saturday को गए थे तीनों सालों में. Saturday. Yes. So the second trend would be that the maximum people visited the cinema on Saturday in all the 3 years. तीनों सालों में Saturday को गए. Okay. Do not hurry. आराम से देखो. And another thing I want to tell you is यहाँ पे भी students ना कई बार hurry करते हैं. And I'll give you an example of this. But इस graph में क्या मतलब है पहले मैं वो बता रहा हूँ. देखो 2003 को पहले देखो. Ignore 2005 and 2007. कौन सा maximum है? 2003 में maximum कौन सा है? Saturday. Then you come to 2005, maximum कौन सा है? Saturday. Then you come to 2007, maximum कौन सा है? Saturday. तीनों सालों का अलग अलग देखा, फिर कंबाइन करा. Do not directly do the comparisons. मतलब सीधा ऐसे मत करने लग जाओ कि 2007 में मैक्सिमम थे. ऐसा नहीं है. तीनों सालों का अलग अलग देखोगे. 2003 का 2005 के साथ कंबाइन मत करो. यू आर कंपेयरिंग द डेज. तो अगर डेज को कंपेयर करना है तो सिर्फ मंडे को देखो, फिर पहले सिर्फ 2003 को देखो, फिर 2005 को देखो, फिर 2007 को देखो. डू नॉट इनका भी कंपैरिजन साथ में ही मत करने लग जाओ सालों का. So don't get confused here. Okay, so the second trend I will write is, like you said, the percentage of cinema visitors on Saturday was the highest. तो ये दो मेरे फीचर्स होंगे. इसके अंदर मैंने दोनों चीजें कर दी, ईयर्स का भी कर दिया और डेज का भी कर दिया. एंड आई विल प्रेजेंट दिस इन माय ओवरऑल. सो जस्ट टू ऐड मोर क्लैरिटी, मैंने ना रैंडमली 2-3 और ग्राफ्स लिए हैं बुक से. आई हैव नॉट थॉट मच अबाउट इट कि कहाँ से कौन सा ग्राफ है. बस मैंने रैंडमली 2-3 ग्राफ्स लिए हैं. So now let's come to this graph. इसका भी overall practice करते हैं. Okay. So overall में वैसे ही सोचो जैसे हमने करा था अभी. देखो y axis पे तो डेटा होता है, वो तो हमने देखना है बाद में, उसको अभी इग्नोर मारो. कंपैरिजंस होंगे. अगेन ओवरऑल पढ़ने के लिए पहले तुम क्वेश्चन पढ़ते हैं. The graph below shows the number of trips made by children in one country to travel to and from school. मतलब कितने ट्रिप्स चिल्ड्रन ने करे
स्कूल जाने के लिए यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब कार से कितने ट्रिप्स लगाए, चल के कितने ट्रिप्स लगाए, साइकिल करके कितने ट्रिप्स लगाए, बस एंड वॉकिंग कंबाइन कितने ट्रिप्स लगाए, एंड सिर्फ बस से कितने ट्रिप्स लगाए उन्होंने स्कूल के लिए. ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है. एंड देन व्हाट्स गिवन इज द डेटा इज गिवन फॉर 2 years, 1990 and 2010. Okay, so I understand that. Now there will be 2 comparisons. One will be between the years, कि increase हो रहा है कि decrease हो रहा है. And the second thing will happen किसके बीच में, कार के बीच में, walking के बीच में, cycling के बीच में, bus and walking के बीच में, and bus के बीच में. तो अब now let's go for the easy comparison. You compare with me all of these modes. सारे modes compare करते हैं. ये 5 modes हैं. तो अब बताओ मेरे को मैक्सिमम किसके साथ गए थे, मैक्सिमम ट्रिप्स किससे गए, एनीवन? सर बस. अच्छा, बस से. ओके, इज इट कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एनीथिंग इज मिसिंग? थिंक. और सर 2010 में सर कार से गए थे हाँ, तो maximum. ओके, गुड. तो नाउ यू हैव सेड के मैक्सिमम ट्रिप्स वर मेड बाय 1990 में, मैक्सिमम वर मेड बाय बस, and 2010 the maximum were made by car. अब देखो, he did the right thing. He did 2 comparisons. दोनों बार उसने अलग अलग करा. तो पहले सिर्फ 1990 को ऑब्जर्व करा. So first he looked at 1990. 1990 में when he looked at it, he got to know कि देखो, when he got to know 1990, he looked at पहले वाला बार, कार का, वॉकिंग का, साइकिलिंग का, बस एंड वॉकिंग का, बस का. इनका पहले वाला देखा उसने देखा कि पहले वाला कौन सा मैक्सिमम है, बस का. तो ही टोल्ड मी कि 1990 में मैक्सिमम ट्रिप्स किससे करे गए, बस से. देन ही लुक्ड एट 2010 का उसने अब सेकंड वाला बार देखा सबका, सबसे ज्यादा किसका आ रहा था, कार का. एंड ही सेड के मैक्सिमम ट्रिप्स वर मेड बाय कार. सो नाउ दिस विल बी वन फीचर. ये एक फीचर हो जाएगा कि 1990 में मैक्सिमम किसके साथ करे गए, बस के साथ. 2010 में मैक्सिमम किसके साथ करे गए, कार के साथ. दिस विल बी वन टाइप ऑफ कंपैरिजन. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन और नो? बताओ, एनी डाउट्स? No sir. Okay, now let's look at the other type of comparison. तो other type of comparison करने के लिए हम क्या करेंगे, 1990 का and 2000 का करेंगे कि बढ़ा के घटा. So now let's tell me, कार से जो number of trips थे वो increase हो रहे हैं कि decrease हो रहे हैं? Increase. Good. Let's go the next thing. Walking. Sir decrease. Okay. Cycling. Sir decrease. Okay. Bus and walking. Decrease. Bus. Decrease. Is it clear to everyone? Yes sir. ठीक है. अब देखो, अकेला कार का नहीं देखना, अकेला बस का नहीं देखना. This is what some students do. पता है क्या करते हैं, मैं अब बता रहा हूँ. मैक्सिमम किसका लिखा था, बस का. मैक्सिमम किसका लिखा था, कार का. बस कार और बस को ही देखना शुरू कर देंगे. ऐसे नहीं, वो कंपैरिजन खत्म हो गया. You're doing the other comparison. सबका लिखना है. तो अब सबका कैसे लिख सकते हो एक लाइन में, मेरे को बताओ. Can anyone tell me how we can write about all the modes? पांचों का एक लाइन में कैसे बता सकते हैं? किसी को बताना हो तो. सर अकेले कार का इंक्रीज हो रहा, बाकी का सभी का डिक्रीज हो रहा. ठीक है. तो और ऐसे बोल सकता हूँ, सबका इंक्रीज हुआ एक कार को छोड़ के, है ना. ये भी तो वही बात हो गई, सबका डिक्रीज हुआ कार को छोड़ के. तो आई कैन राइट दैट. और जैसे उसने बोला कि कार का इंक्रीज हुआ, बाकी सबका, कार का इंक्रीज हुआ, बाकी सबका डिक्रीज हुआ. So that is what I will write in the second thing, कि the number of trips made by all the modes except one, एक को छोड़ के, सारे modes को एक को छोड़ के fell with time, गिर गए, टाइम के साथ गिर गए. तो ये मेरे 2 फीचर्स आ गए. आप बताओ, anyone have any doubts इसके अंदर? अच्छी तरह देखो, अगर डाउट है पूछो. If you ask me, मैं clarify करूंगा and you'll be better at attempting this. बताओ, any doubts? Is it clear, this overall? Yes sir. Yes.
Okay, so let's take, I'll make you practice now. So someone else now. अब ये देखो. Okay, we have to write the overall. So let's look at the graph. तो पहले हम question पढ़ते हैं. The chart below illustrates the result of a British survey taken in 2005 on the types of houses people liked. तो people को कौन से घर पसंद थे, ठीक है. तो और अब ग्राफ देखा तो y axis पे डेटा है, x axis पे क्या है, फ्लैट्स. मतलब कितने लोगों को क्या पसंद है, फ्लैट्स. पर ये तीन चीजें क्या दी हुई हैं. आई लुक्ड एट इट एंड इट्स गिवन व्हाट लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज. दीज आर 3 cities. एक सिटी दी हुई है लंदन, एक सिटी दी हुई है ऑक्सफोर्ड, एक दी हुई है कैम्ब्रिज. तो इसका ये मतलब है कि अराउंड 60% लोगों को फ्लैट्स पसंद है. कहाँ पे पसंद है, लंदन में. ऑक्सफोर्ड में कितने लोगों को पसंद है फ्लैट्स, 30%. एंड 20% लोगों को कैम्ब्रिज में पसंद है फ्लैट्स में रहना, ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ दैट्स गिवन टू यू. ओके, सो नाउ अब ओवरऑल करना है. तो ओवरऑल में ना दो कंपैरिजंस बनेंगे. एक तो सिटीज के बीच में आपस में, और एक किसका बनेगा, हाउसेस के बीच में, कि कौन से टाइप के घर हैं. तो ये 2 टाइप के कंपैरिजन बनेंगे. सो अब सिटीज का करना ना, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि सिटीज का कैसे करते हैं, आपस में सिटीज का कैसे करते हैं. सो नाउ लेट्स लुक एट वन बिटवीन सिटीज. सो सिटीज का करना है तो हम कैसे करेंगे इज सिटी को बदलेंगे. मतलब लंदन के बाद हम ऑक्सफोर्ड का डेटा देखेंगे, पर फ्लैट ही देखते रहेंगे. तो अब फ्लैट्स में देखो, फ्लैट्स सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर है तीनों सिटीज में से. लंदन में. Can you think? You are now changing the cities. You're comparing the cities. You're keeping what. सिर्फ क्या देख रहे हो, फ्लैट्स. Is it clear? आराम से कंपैरिजन करो. देखो फ्लैट्स का करते हैं. पहले 3 सिटीज हैं, तीनों सिटीज में सबसे ज्यादा कहाँ पे फ्लैट्स, लंदन में. लंदन में. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी कम टू द सेकंड कंपैरिजन. इसी का सिटीज टाइप. अब किसका करेंगे, टेरेस्ड हाउसेस का. टेरेस्ड हाउसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर है, ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड में. कमिंग टू डिटैच्ड हाउसेस, सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर है, कैम्ब्रिज. okay. And let's coming to semi detached, सबसे ज्यादा कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, राइट, ठीक है. नाउ यू नो हाउ टू मेक अ कंपैरिजन. अब तुम देखो, ये बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चारों का क्या डिफरेंट हो रहा है. सो आई वुड नॉट बी एबल टू से दिस थिंग इन वन सेंटेंस. फ्लैट सबसे ज्यादा पॉपुलर थे लंदन में, टेरेस्ड हाउसेस सबसे ज्यादा पॉपुलर थे ऑक्सफोर्ड में, डिटैच्ड हाउसेस सबसे ज्यादा पॉपुलर थे कैम्ब्रिज में. तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो या फिर तुम ये बता सकते हो डिटैच सेमी डिटैच्ड हाउसेस वुड बी लाइक दोनों में, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज में थे ज्यादा पॉपुलर. सो इट विल बी डिफिकल्ट. आई कैन लुक एट समथिंग एल्स आल्सो. अब समथिंग एल्स आई लुक, फ्लैट्स में देखा मैंने तीनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. देखो लंदन में 58% एंड ऑक्सफोर्ड में सिर्फ 30% लोगों को. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है लाइकिंग के बीच में. टेरेस्ड हाउसेस में ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? नो सर. नो सर. तीनों की परसेंटेज सेम है. कमिंग टू सेमी डिटैच्ड हाउसेस आल्सो परसेंटेज इज वेरी डिफरेंट. एक में कितना है 10, एक में कितना 25, एक में कितना 35. वेरी डिफरेंट. एंड सेमी डिटैच में भी चलो तुम कह सकते हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में तो सेम ही है. तो तुम अब देखो, मैं लिख ऐसे बना सकता हूँ, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन फ्लैट्स. और नंबर ऑफ पीपल लिविंग नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड फ्लैट्स. ह्यूज डिफरेंस था प्रोपोर्शन में जो लाइक करते थे फ्लैट्स एंड डिटैच्ड हाउसेस तीनों सिटीज में. मगर टेरेस्ड हाउसेस एंड सेमी डिटैच्ड हाउसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं था. तो आई रोट दिस. There was a huge difference in the proportion of people preferring to live in flats and detached houses among the 3 cities, while for the other 2 types of the proportion was similar. तो इन तीनों में difference था काफी ज्यादा, while the other 2 types के लिए proportion क्या थी, similar थी. तो ये मेरा comparison हो गया cities का. Now, without getting confused, try to compare the houses. ठीक है, houses को compare करते हैं. मतलब अब मैंने क्या compare करना है, flats को terraced के साथ, फ्लैट्स को डिटैच्ड के साथ, फ्लैट्स को सेमी डिटैच्ड के साथ. दिस इज व्हाट आई मीन बाय द कंपैरिजन ऑफ हाउसेस. नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस व्हाइल यू आर मेकिंग दिस कंपैरिजन ना, सिटी नहीं बदलनी है. मतलब घर बदल रहे हैं, सिर्फ लंदन को देखो. पहले सिर्फ लंदन को देखते हैं. लंदन में चारों घरों में से सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है?
लंदन में देखो फ्लैट्स, लंदन में टेरेस्ड, लंदन में डिटैच्ड, लंदन में सेमी डिटैच्ड। लंदन में कौन सा घर सबसे ज्यादा पॉपुलर है? फ्लैट्स। फ्लैट सर। फ्लैट्स। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ऑक्सफोर्ड का देखो, ऑक्सफोर्ड में सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है? फ्लैट्स। फ्लैट्स, राइट। ऑक्सफोर्ड में देखो, ये फ्लैट उससे कम हो गया, ये टेरेस्ड उससे कम हो गया, डिटैच्ड भी फ्लैट से कम है, सेमी डिटैच्ड भी फ्लैट से कम है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है लंदन ऑक्सफोर्ड में? भी फ्लैट्स। कैम्ब्रिज में सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है? डिटैच्ड हाउस। डिटैच्ड हाउस। सो आई विल राइट दिस। कैसे लिखूंगा? लंदन में सबसे ज्यादा फ्लैट्स, ऑक्सफोर्ड में सबसे ज्यादा फ्लैट्स, कैम्ब्रिज में सबसे ज्यादा डिटैच्ड। In London and Oxford, the maximum people prefer to live in flats, while in Cambridge, the maximum people prefer to live in detached houses. तो इन दोनों शहरों में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहना पसंद करते थे? फ्लैट्स। while कैम्ब्रिज में मैक्सिमम पीपल कहाँ पे रहना पसंद करते थे? डिटैच्ड में। तो ये मेरा सेकंड ओवरऑल बन जाएगा। ओवरऑल का सर फर्स्ट वाला सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल। अच्छा, वो मैं बताता हूँ, ठीक सर है। वो दोबारा बता देना। Okay, I'll clarify that. Second one is easy. यस। Okay. So देखो इसके अंदर I was okay, it was difficult. Let's go. हम cities का comparison कर रहे हैं। cities का मतलब क्या होता है? लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। तो अब जब ये comparison करना है ना, so we are going to do what? हम सिर्फ ये करेंगे कि हम जगह देखेंगे, मतलब हम घर सेम रखेंगे। तो लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज देख रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? फ्लैट देखेंगे। अब ये मत करना कि बीच में टेरेस ले आओ। फ्लैट का अलग से करो, टेरेस्ड का अलग से करो, डिटैच्ड का अलग से करो, सेमी डिटैच्ड का अलग से करो। 4 कंपैरिजन करो, फिर कंबाइन करो एक सेंटेंस में। तो पहले मैं फ्लैट्स का देखता हूँ तीनों शहरों में से। तो तीनों शहरों में से फ्लैट सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलर है? लंदन में, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि फ्लैट्स की लाइकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तीनों शहरों में। मतलब यहाँ पे कितने लोगों को पसंद है? 60%, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना? 20। मतलब ये नहीं है कि सिमिलर लाइकिंग है। फ्लैट के लिए जो लाइकिंग है वो डिफरेंट है। मतलब फ्लैट में लंदन में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मगर कैम्ब्रिज में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और ऑक्सफोर्ड में कम है, बीच में है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। कमिंग टू टेरेस्ड हाउसेस, तीनों की प्रोपोर्शन क्या है? सेम है। मतलब टेरेस्ड हाउसेस की जो लाइकिंग है तीनों शहरों में नियरली क्या है? सेम है। मतलब लगभग कितने लोगों को पसंद है? 15 से 20% लोगों को कहाँ पे रहना पसंद है? टेरेस्ड हाउसेस में रहना पसंद है। डिटैच्ड हाउसेस में अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 10% लोगों को डिटैच्ड हाउसेस में रहना पसंद है लंदन में, मगर कैम्ब्रिज में देखा जाए तो 30%। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 35%। एंड सेमी डिटैच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 25 है, ये अराउंड 20 है, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैंने यही बोला, टेरेस्ड हाउसेस एंड सेमी डिटैच्ड हाउसेस की लाइकिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मगर फ्लैट्स एंड डिटैच्ड हाउसेस की जो पसंद थी शहरों में वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस था। तो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग। देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लाइकिंग टू लिव, जो जिनको पसंद था रहना फ्लैट्स में, अमंग द 3 cities। तो फ्लैट्स में रहना एंड डिटैच्ड हाउसेस में रहने वाले लोगों में बहुत डिफरेंस था तीनों शहरों में। पर जो अदर 2 टाइप के घर थे उसमें जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? नियरली क्या है? सेम है। इज इट क्लियर नाउ मंजीत? यस सर। Okay, so this is how I write my overall. Another graph, let's look. अब ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, दिस वाज रियली डिफिकल्ट, ये वाला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अनफॉर्चुनेटली आज जिस भी ग्राफ पे मेरी नजर गई वो डिफिकल्ट था, बट आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट। ऑल ऑफ देम हैव कम इन द एग्जाम, तो कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये नहीं करा कि मैं कोई इजी ले लूं। तो अब ये वाला बाय चांस थोड़ा मेरे को लगता है ये वाला थोड़ा इजी है। सो नाउ लेट्स लुक एट इट, यू आर एबल टू डू इट और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है कि 2 ग्राफ्स है। जब 2 ग्राफ्स आ जाते हैं ना, व्हाट आई डू इज वन ओवरऑल आई राइट फ्रॉम हियर, वन फीचर आई राइट फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ, वन फीचर आई राइट फ्रॉम द सेकंड ग्राफ। मैं दोनों में से एक लगता हूँ। दोनों टॉप में से उठाने गलत हो जाएंगे, तो और सेकंड वाले को इग्नोर करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो दोनों में से एक उठाते हैं। तो इसमें 2 कंपैरिजंस बन रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हिच कंपैरिजंस विल बी देयर इन द फर्स्ट ग्राफ? पहले तो ग्राफ क्या है पढ़ो। The following graphs illustrate the electronic game trends in South Korea. इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग के ट्रेंड्स बता रहे हैं।
तो परसेंटेज ऑफ टोटल गेमर्स, मतलब 12 से साल जो कम है उसमें से कितने बच्चे गेमिंग खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग खेलते हैं। मतलब 10% बच्चे क्या खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। 13 से 19 में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 20%। 20 to 29 में कितने लोग खेल रहे हैं, 30% लोग खेलते हैं। मतलब 30% ये वाले एज ग्रुप के लोग खेलते हैं। 30 के ऊपर वाली एज ग्रुप में कितने खेलते हैं, 10% मेल्स एंड 2% फीमेल्स। सो इज इट क्लियर कि ग्राफ क्या दे रहा है? एंड सेकेंड ग्राफ क्या दे रहा है, परसेंटेज प्रेफरेंस अमंग गेमर्स। मतलब कितने लोगों को रोल प्लेइंग गेम्स पसंद है, मतलब 50% को क्या पसंद है, रोल प्लेइंग। 20% को क्या पसंद है, एक्शन। स्ट्रैटेजी कितने को पसंद है, 15। ये कितने को पसंद है, 10। तो यहाँ से पता चलता है परसेंटेज प्रेफरेंस अमंग गेमर्स, मतलब कितने लोगों को ये प्रेफर करते हैं ये वाली गेम्स खेलना। एक्शन गेम्स कितने पसंद करते हैं, प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद। तो ये ग्राफ अब मुझे समझ में आ गया। Now, if you look at the first graph, there'll be two types of comparisons. Can someone tell me which two types comparisons? बताओ। सर मेल फीमेल। हाँ, और दूसरा? और क्या दिया हुआ है ग्राफ में? सर एज। सर हाँ, एज ग्रुप के बीच में। गुड। एज ग्रुप के बीच में कौन कंपैरिजन करेगा, बहुत सिंपल है। एज ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करो। तो देखो एज ग्रुप के करोगे ना, तो अगेन देखो दो चीजें तुम्हें दी हुई हैं, एक मेल दिया हुआ है, एक फीमेल दिया हुआ है। पहले मेल्स का करो बस। डिफरेंट एज ग्रुप में मेल देखो, सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में मेल है? सर 20 and 29। 29। ठीक है। एंड सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में फीमेल्स पसंद करते हैं खेलना? सर 20 and 29। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो दो कंपैरिजन करे फिर कंबाइन करा। तो आई मेड टू कंपैरिजंस। तो मैक्सिमम गेमर्स मेल्स में मैक्सिमम गेमर्स किसमें थे, 2029। फीमेल्स में मैक्सिमम किसमें थे, 2029। अमंग बोथ मेल्स एंड फीमेल्स द मैक्सिमम गेमर्स कौन से में थे, 20 to 29 एज ग्रुप में थे। क्लियर हो गया? ओके। I think it's clear. If it's not, please ask me. And second comparison, इसने क्या बोला था, males and females का, right? हरजोत? यस सर। चलो मेल एंड फीमेल में कंपैरिजन करते हैं। तो पहले किसका करेंगे, कितने कंपैरिजन बनेंगे, आराम से कर, कितने बनेंगे? पहले किसके लिए करेगा? सर फर्स्ट। हाँ, तो 12 से कम वाले लोगों में मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है? सर मेल। चलो सेकंड आ जाओ, 13 से 19 कौन ज्यादा है? सर सर मेल। चलो तीसरा ग्रुप, तो 20 सर से मेल। मेल। चौथा? मेल सर। तो चारों एज ग्रुप में कौन ज्यादा है? मेल। मेल गेमर्स की परसेंटेज ज्यादा थी, किससे ज्यादा थी, फीमेल गेमर्स की परसेंटेज से ज्यादा थी मेल गेमर्स की परसेंटेज। तो मैंने ये लिख दिया, इन ऑल द एज ग्रुप्स द परसेंटेज ऑफ मेल गेमर्स वाज मोर देन फीमेल गेमर्स। देखो पहले हर एक का करता हूँ, जंप ना करो, अलग अलग करो, कंबाइन करके नहीं होता है। आराम से कंपैरिजन होते हैं, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर सोचो तुम कंपैरिजन करके एक लाइन में कैसे लिखोगे। अब ऐसे हो सकता था एक एज ग्रुप में, फॉर एग्जांपल इस एज ग्रुप में फीमेल ज्यादा हो जाती, ऐसे हो जाता। फिर तुम देखते सारे एज ग्रुप में 30 को छोड़ के, एक को छोड़ के मेल्स की परसेंटेज ज्यादा थी, किससे ज्यादा थी, फीमेल से ज्यादा थी। पर ऐसा नहीं हुआ, सब में किसकी ज्यादा थी, मेल्स की ज्यादा थी, तो तुमने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब ये तुम्हारे पास दो हैं, दो कंपैरिजंस बन गए, एक एज ग्रुप वाला, एक मेल्स एंड फीमेल्स वाला। दोनों में से एक उठाओ क्योंकि तुम्हारे पास दो ग्राफ है। ठीक है। सो आई पिक्ड अप द फर्स्ट वन, आई डिडंट पिक अप द सेकंड वन। मैंने कोई भी उठा लिया, तुम कोई भी उठा लो, तुम्हारी मर्जी है, डजंट मैटर। अब सेकंड वाला ग्राफ आओ। सेकंड वाले ग्राफ में ना एक ही कंपैरिजन बन रहा है, क्योंकि दो, देखो कौन सा बन रहा है, टाइप ऑफ गेम्स। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो मैं इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, सिर्फ टाइप ऑफ गेम्स दिया हुआ है। अब देखो सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है? रोल ऑफ। सर रोल प्लेइंग। तो बस, तो सबसे पॉपुलर गेम्स कौन सी थी, रोल प्लेइंग। और ऊपर वाले में से कोई भी उठा लो, तो सारे ग्रुप्स में मेल गेमर्स की परसेंटेज ज्यादा थी फीमेल परसेंटेज से। एंड सेकंड वाले से उठा लिया कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है, रोल प्लेइंग गेम्स। सो दैट वुड बी योर सेकंड ओवरऑल का ट्रेंड। तो ऐसे दो ओवरऑल में दो ट्रेंड्स लिखने होते हैं। एनी डाउट्स बताओ?
No, sir. No. Is it clear for everyone? Yes, sir. It's really easy. I can practice overall again दोबारा कभी, पर ऐसे overall लिखते हैं. Overall लिखने सीख लो तो you will score really good bands in the graph. Okay. Now coming to last thing, body paragraphs. Let me complete the bar graph कि कैसे पूरा लिखना है. फिर तुम्हारे को practice कर. We will do more practice in the coming days for the overall. Don't worry. If some of you are not clear. अब ओवरऑल में बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ना पैराग्राफ बनाने का कोई ऑर्डर होना चाहिए. ऑर्डर का मतलब है कुछ लॉजिक. ऐसे नहीं होगा कि मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो मैं फ्राइडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने थर्सडे लिख दिया, फिर मैंने वेडनेसडे लिख दिया. ऐसे नहीं, या ऐसे भी नहीं कि पहले मैंने मंडे लिखा, फिर ट्यूसडे लिखा, फिर वेडनेसडे. कोई ऑर्डर होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ लॉजिक होना चाहिए. वेट, यू शुड हैव सम लॉजिक टू राइट द ग्राफ. ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया कि ये पहले दिया था इसलिए इसको पहले लिखना है. हाँ, मंडे ट्यूसडे से पहले आता है, ये लॉजिक मुझे मान चलता है. पर सपोजिटली यहाँ पे कंट्रीज होती, तो कंट्रीज में तुम पहले, यहाँ पे इंडिया होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पहले क्यों ले रहे हो? देयर शुड बी अ लॉजिक. ये नहीं लॉजिक है कि डायग्राम में वो पहले दिया हुआ है तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया. ऐसे नहीं. तो पहले सोचो कि मैंने अपने पैराग्राफ कैसे डिवाइड करने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले पैराग्राफ में मैं वीकडेज का लिख देता हूँ. वीकडेज होते हैं जो जिन दिन हम काम करते हैं. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मान सकते हो. फ्राइडे को वीकेंड में ले लेते हैं क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इस दिन वीक खत्म हो जाता है, इस दिन काम करना खत्म हो जाता है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज में फ्राइडे को वीकेंड ले लेते हैं. तो तुम मंडे से थर्सडे को क्या ले सकते हो? वीकडेज. तो पहले पैराग्राफ में मैं वीकडेज का लिखूंगा, सेकंड पैराग्राफ में वीकेंड्स का लिखूंगा. सो यू कैन हैव दिस कैन बी अ ट्रेंड. Or you can divide the paragraphs like this, or you can divide it like on the basis of increase and decrease. For example, देखो मंडे को क्या हो रहा है? Decrease. ट्यूसडे को क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट. वेडनेसडे को क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट. थर्सडे को क्या हो रहा है? डिक्रीज. देखो पहले ज्यादा था फिर गिर गया. फ्राइडे को क्या हो रहा है? सेम. सैटरडे को क्या हो रहा है? इंक्रीज. देन संडे को क्या हो रहा है? डिक्रीज. तुम इसके बेसिस पे कर सकते हो कि मंडे, थर्सडे, संडे को गिरा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को फ्लक्चुएट करा, फ्राइडे को सेम रहा, सैटरडे को इंक्रीज हुआ. तो तुम इस बेसिस पे अपना पैराग्राफ बना सकते हो. तो क्या करोगे? पहले मंडे, थर्सडे एंड संडे लिखोगे, फिर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे लिखोगे, फिर फ्राइडे लिखोगे, फिर सैटरडे लिखोगे. ऐसा क्यों करा? क्योंकि मंडे, थर्सडे एंड संडे को क्या हो रहा था? गिर रहा था, इसलिए तीनों को इकट्ठे लिखा. तो कोई लॉजिक है. आई एम नॉट रैंडमली नहीं लिख रहा हूँ, मैं बिना बात के नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. जो चीज गलत होती है ना, वो क्या होता है कि हम डेटा देख के लिखने लग जाते हैं. डेटा देख के लिखने का मतलब क्या है? And this, trust me, so many students do, and let me explain what I mean by that and how bad it is. So a lot of students do this. They will start by writing Tuesday and Wednesday and Thursday together. क्यों? क्योंकि तीनों में 10% था. तो Tuesday, Wednesday and Thursday लिख दिया पहले क्योंकि इनमें 10% है. चलता है, मेरे को लिख दिया. अब तुम क्या करोगे? नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे? यू विल गेट कंफ्यूज्ड. देखो पहली वाली अप्रोच में आई न्यू व्हाट टू डू. I will write the weekdays first in the first paragraph. I'll write the weekends in the next paragraph. In the second approach, I knew पहले मैं किसका लिख रहा हूँ? जिनका डिक्रीज हो रहा है. फिर किनका लिख रहा हूँ? जिनका इंक्रीज हो रहा है. फिर किसका लिख रहा हूँ? जिनका क्या रह रहा है? सेम रह रहा है. तो सेकंड वाली अप्रोच में मुझे पता था. अगर तुम ये वाली अप्रोच बना के लिखना लग जाते हो, क्या अप्रोच? कि इनका सेम है, उसके बाद क्या करोगे ना? एट एवरी स्टेज यू विल बी लाइक, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या लिखना है. चलो अब लिख दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का सेम है. अब किसका लिखना है? अब मंडे का लिखना है कि फ्राइडे का लिखना है? अब किसका लिखना है? सैटरडे का लिखना है, संडे का लिखना है? कोई लॉजिक ही नहीं है. इट विल, तुम हर एक स्टेप में क्या रहोगे? कंफ्यूज रहोगे कि अब नेक्स्ट क्या करना है. तो ये नहीं बात कि मैं नहीं लिखता कि सेम है. आई राइट दैट, पर उसके हिसाब से मैं अपना पैराग्राफ नहीं डिवाइड करता हूँ. देखो आई डिवाइड माई पैराग्राफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे मैंने पहले पैराग्राफ में लिखे. अब बाय चांस ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को सेम था तो मैंने लिख दिया कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को सेम आ रहा है और मंडे को अलग कर दिया. अब चलता है मुझे. ये पहले पैराग्राफ में मैं 4 लिख रहा था, इन 3 का सेम था तो मैंने 3 का सेम बता दिया. सेकेंड पैराग्राफ में मैं वीकेंड्स लिख रहा हूँ तो वीकेंड्स की बात कर दी कि वीकेंड में ऐसा है तो मैंने ऐसे डिवाइड करा, इसलिए मैंने इसको कर दिया. डोंट जस्ट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. बस पर ये मत करो कि पहले ही लाइन ही ऐसे लिखने लग जाओ इन दोनों का सेम है.
it'll become clear with you when you attempt more graphs कि how you will get confused by writing just focusing on the data कि data same है. वो अच्छा trend नहीं होता, वो minor feature है. देखो ऊपर भी क्या लिखा था, main feature है. Now let me give an example. 100 of my students take the exam. 100 of the students में से 5 बच्चों के 7 bands आए. तो अब मैं लिख रहा हूँ इन 5 के same आए. अब now this is not a good trend to write because क्या इसके आगे क्या लिखूंगा, बाकियों के कितने आए. तो क्या अच्छा क्या होगा लिखने का कि for example I was 100 students came to me. After joining me 20 के bands increase हुए. तो मैं ये अच्छी बात है, इन 20 के increase हुए, 20 के bands में कोई change नहीं आया, 10 के bands गिर गए supposedly. I'm just giving you a random example. So 20 के bands increase हुए, 20 के गिर गए, 20 के same रहे. This is a good thing to mention rather than saying कि 10 के कितने आए, 7 band आए, 5 के कितने आए, वो आए, वो तो data हो गया. That's not a good trend to write. तो वो main feature नहीं होता, इसलिए उसको relevant feature नहीं मानते, वो नहीं लिखते. So I divide it like this. I'm going to go with the first 4 of the weekdays in the first paragraph, the weekends in the second paragraph. मुझे लगता है वो अच्छा method है. So I divided like this. And बस मैं शुरू हो गया, Monday से शुरू करता हूँ. The percentage of cinema visitors on the Monday was the least. Least का मतलब होता है सबसे कम. At only 7% in 2003. And कितना था? 7% था. This decreased further to stand at only 5% in 2007. और ये और गिर के कितना हो गया? 5% हो गया. ठीक है, फिर मैंने क्या करा, अब देखो मंडे लिख लिया, अब मैंने आगे चलता हूँ ट्यूसडे टू थर्सडे. सिनेमा अटेंडेंस वाज स्लाइटली हायर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे with nearly 10% people visiting the cinema on these days in all the 3 years. And nearly कितने लोग visit कर रहे हैं? 10%. I'm done with Tuesday to Thursday also. देखो देखने में कितना difficult लग रहा है, but I have been able to write only 3 lines and I have been able to finish from Monday to Thursday. खत्म कर दिया. On the weekends, the percentage was significantly higher than the weekdays. अब मैंने ये लिखा कि weekends पे काफी ज़्यादा थी percentage किसके comparison में weekdays. ये मैं बताना चाहता हूँ. This is a trend. You should mention this. This is a good feature to mention. So data wasn't important. I had to write this कि weekdays में ज़्यादा कम लोग जाते हैं, weekend पे ज़्यादा लोग जाते हैं. तो मैंने वो mention करा. Then after mentioning that, I came to this part. With the highest people visiting the cinema on Saturday. And सबसे ज़्यादा कौन से दिन जा रहे हैं? Saturday. And फिर मैंने bracket में उनकी percentage लिख दी around 26 to 28%. खत्म हो गया Saturday. The next highest proportion could be seen on Sunday, and nearly 20% people visited the cinema on this day throughout the given period. And next highest कहाँ पे देखी गई? Sunday को, जब कितने लोग जा रहे हैं? 20%. While on Friday, the figure was slightly less at 16%. And Friday ko jo percentage thi was slightly less thi at how much? 16%. So I've ended in the first paragraph I mentioned these, and in the second paragraph I mentioned these. So यहाँ पे मेरा और यहाँ पे मेरा लिखने का order ये था, सबसे ज़्यादा, next highest, फिर next highest. ये order के हिसाब से मैंने लिखा. ठीक है, सबसे ज़्यादा ये था सेकेंड पैराग्राफ में. फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने किससे शुरू करा? मंडे सबसे कम, फिर मैंने लिखा इन 3 दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा इससे at 10%. तो ये मेरा लॉजिक हो गया. दिस इज हाउ आई अटेम्प्टेड द बॉडी पैराग्राफ. ओके, सो थोड़ा टफ था ये ग्राफ. सो दिस इज हाउ आई वुड अटेम्प्ट दिस ग्राफ. ओके, now your homework, and I'll help you with this and how easy it becomes. I'll tell you. So the graph below shows the number of magazines sold in 5 countries in 2005 and 2010. 2015, a prediction for 2020 is also given. Prediction nahi, and 2010 ka bhi data मैंने change कर दिया because it's the present year. 2015 and 2020. Summarize the information by selecting and reporting the main features. So let's see. अब तुमने डिवाइड करने पैराग्राफ, ये 5 कंट्रीज हैं. अब तुम मेरे को बताओ कैसे डिवाइड करोगे. व्हाट वुड बी अ गुड मेथड टू डिवाइड. मेरा ये मतलब था, ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले फ्रांस लिख दिया, फिर यूएस लिख दिया, फिर यूके लिख दिया, फिर इटली लिख दिया, फिर स्पेन. ये मेथड गलत है. नाउ यू टेल मी कैसे लिखोगे ग्राफ.
which two countries, okay, which three countries you'll write together? How will you divide? Can you think? I'll help you out. फ्रांस में क्या हो रहा है? मैगजीन सोल्ड विद टाइम इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज हो रही है. ओके. एंड यूके में भी क्या हो रही है? सर डिक्रीज. तो अब इन दोनों को मैं इकट्ठे लिख सकता हूँ, फ्रांस एंड यूके, बिकॉज इन दोनों में क्या हो रही है? सर डिक्रीज. ओके, गुड. नाउ लेट्स कम टू यूएस. यूएस में क्या हो रही है? पहले इंक्रीज एंड यस देन सर डिक्रीज. इटली में भी पहले इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. सर इसमें स्टेबल ऑलमोस्ट सर सेम. पर इसमें भी यही हो रहा है ना, पहले इंक्रीज एंड देन फर्स्ट इंक्रीज. फ्रॉम 2005 to 2015 क्या हो रहा है? इंक्रीज. यस सर. एंड देन व्हाट? डिक्रीज. सो अब मैं ये लिख सकता हूँ फ्रांस एंड यूके पहले पैराग्राफ में दोनों में क्या हुआ? डिक्रीज हो गया. देन आई Yes, राइट sir. यूएस, इटली एंड स्पेन के इन तीनों में क्या हुआ? पहले इंक्रीज हुआ 2005 से लेके 2015 तक, एंड 2015 के बाद क्या हुआ? डिक्रीज. यस सर. Is it okay for everyone? This is how I would divide my paragraph, and I will write it. I would not randomly write पहले France, फिर US, फिर UK, फिर Italy, फिर Spain. ऐसे करूँगा तो I won't score good marks. Okay. Now thinking about the overall. Overall, भी I'll help you out. One comparison you can do between countries. So do a comparison between countries. Countries के बीच में करो. पता है कितने कंपैरिजंस बनेंगे? पहले मैं तुम्हें ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ. तीनों करो, फिर मेरे को बताना. पहले किसके लिए करोगे? कौन से ईयर के लिए? 2005 के लिए. फिर कौन से ईयर के लिए करोगे? 2015 के लिए. और फिर कौन से ईयर के लिए करोगे? 2020 के लिए. There will be 3 comparisons. फिर बाद में सोचना कि तीनों को एक ही लाइन में कैसे कहना है. So let's do it. So 2005 में मैक्सिमम मैगजीन्स कहाँ पे बेची जा रही थी? 2005 में. सर फ्रांस में. Okay. 2010 सर फ्रांस में. and 2020. सर सेम फ्रांस. हाँ, तो अब लकीली तीनों सेम थे. तो तुमने क्या लिखा? मैक्सिमम मैगजीन्स कहाँ पे बेची गई तीनों सालों में? कहाँ पे बेची गई? फ्रांस में. Is it clear for everyone? यस सर. Okay. What about the second comparison with years? अब years का देखते हैं. फ्रांस में क्या? अब तुम ओवरऑल ट्रेंड्स देखो. फ्रांस में क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर क्या हो रहा है? इंक्रीज के डिक्रीज? सर डिक्रीज. अच्छा, लेट्स कम टू यूएस. इंक्रीज और डिक्रीज? सर डिक्रीज. यूके डिक्रीज. डिक्रीज. इटली? सर डिक्रीज. स्पेन? फ्लक्चुएट सर. ओके. तो अब तुम ये बोल सकते हो कि सारी कंट्रीज में स्पेन को छोड़ के जो मैगजीन की सेल्स है वो क्या है? डिक्रीज. Yes. So in all the countries except one, magazine की sales क्या है? Decreased with time. That's it. In all the countries, your second trend will be very simple. In all the countries except one, magazine sales decreased with time, because overall your trend is what? Decreasing. So सर नेम तो नहीं लिखनी सर. ऑल द कंट्रीज लिख देंगे ना? all the countries except one. देख बाद Okay, में sir. लिखोगे ना कि किसमें सेम रही, बाद में आ जाएगा ना स्पेन में. जब तो Yes, डेटा sir. बॉडी पैराग्राफ में वो आ जाएगा. Overall में do not focus on minute details, just focus on giving a broad picture. Okay. ओके सर. अब बताओ, anyone else has any doubts? बताओ. I think Manjeet was participative. If others had any issues, please ask. So I know he's clear. और कोई भी doubt हो पूछो. This is how you attempt the graph. सर टेबल का भी ओवरऑल सर बता देना सर किसी दिन. Yeah, I'll cover all the graphs, Manjeet. Yes. ओके सर. Ajol, any doubts? No, sir. Is it clear? Yes, sir. Okay. Okay. Harjot? No, sir. Okay. No, sir. Navdeep? If you get confused ना मेरे को पूछ लिया करो. On the you can leave a message on the group or message also. कुछ भी कर सकते हो. So you can ask me कि मेरे को confusion हो रही है, नहीं समझ में आया. I'll tell you. So बस पूछ लिया करो, and when you attempt the graph मैम को भेजोगे तब भी मैम भी बता देंगे, ऐसा नहीं है. So try writing. This is your homework. I'll share the file with you.
without the red marks, of course. निशा समझ आ गया सारा अच्छे से? निशा, भव्या, Yes, ma'am. अवनीत, किसी को क्वेरीज है पूछ लो अभी तक। Yes, ma'am. हम्म? It's an easy graph. ये वाला जो मैंने होमवर्क दिया है बहुत easy है. We'll cover it once more ताकि तुम्हारे को clarity हो जाए. We'll cover the bar graph once more. Otherwise, this is it. Okay. I'll share the file. If you have any doubts, you can ask. And ये homework है. Please try to submit before 5, ma'am. Okay. Thank you. Before 4 o'clock, 20 मिनट का होमवर्क है। So before 4 o'clock. Okay. Thank you. Thank you, sir. You're welcome.